Students, in the previous session, we have discussed about statement of Gauss's theorem, and then we have used it to find out electric field due to uniformly charged linear charge distribution like a wire. And today we will take it forward to find out the electric field due to uniformly charged thin sheet which is of infinite size, and also to find out electric field due to uniformly charged thin spherical object. Before we move on further, I just want to take a little recap of what all concepts we will be needing as we go further. So the previous knowledge that we will need, one is the concept of surface charge density. Students, surface charge density is sigma, and we define it as charge per unit area. All right. Now suppose if there is a surface over which we have given certain charge, then its surface charge density will be equal to the charge given to the sheet divided by its area. Now, depending upon the shape of the sheet, if the sheet is circular in shape, then the area will be pi r square. If it is spherical in shape, then the surface area will be 4 pi r square. And if it is cylindrical, then it will be 2 pi r h for the curved surface, and so on. That area may change. Okay, now the second one is dot product. Students, मान लो कि कोई quantity है say P that is equal to dot product of A and B. We write it as AB cos theta. Now, depending upon the value of theta, A dot B may have certain positive value, negative value, or even zero value. So, if theta is 0 degree, the dot product will be simply A into B, and if theta is 90 degree, then the dot product will turn out to be 0. Alright, so next one is a resultant of collinear vectors. Students, collinear vectors are those which act along the same line. So either they are parallel to each other or they are anti-parallel to each other. Right? This way. तो अगर तो वो parallel हैं, these vectors are A and B, then the resultant will be simply A plus B. And if they are anti-parallel like this, in that case the resultant will be larger minus smaller vector. If both the vectors are equal, then the resultant will be 0. Alright, the next one is the statement of Gauss's theorem. This is what we have discussed in the previous session, that closed surface integral of electric field. This is what it is. And this value we have learnt was equal to electric flux. So E dot ds over a closed surface is equal to charge enclosed inside the surface, that is a net charge enclosed, divided by epsilon naught if the medium surrounding is air. Okay students, keep it in your mind. नेट चार्ज इनक्लोज का जो मतलब है, तो जितने भी चार्ज जो सरफेस के अंदर हैं वो सारे तो कंसिडर होंगे ही होंगे, उसके साथ में जो सरफेस के ऊपर चार्ज है उसको भी हम एनक्लोज्ड चार्ज ही काउंट करते हैं. तो अगर मेरे पास मान लो कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है और मैं वहाँ पे गॉसियन सरफेस सपोज करती हूँ सरफेस के ऊपर ही, in that case whole of the charge on the surface will also be taken into consideration why we apply the Gauss's theorem. तो जो चार्ज ऑन द सरफेस है उसको भी चार्ज इनक्लोज्ड की तरह ही कंसिडर किया जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ डू वी यूज द गॉसियस थ्योरम टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स और द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो लेट्स गो अहेड. सो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था इन द प्रीवियस सेशन, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 एप्लीकेशंस हैं गॉसियस थ्योरम की, ऑफ एंड ऑन. इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ ही जाता है. देर आर ओनली वेरी रेयर सिचुएशंस जब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो. अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वन ऑफ द वेरी श्योर शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट स्टिल there are times when they do not ask you this question, but still you have to be very very careful in preparing them. So let's see the second application of Gauss's theorem, electric field intensity due to infinitely long thin plane sheet of charge. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या ख्याल रखना है, इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग, द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ दैट शीट इज़ वेरी लार्ज, इट्स साइज इज़ नॉट नोन, एंड इट्स अ वेरी थिन शीट. ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा उसे अप्लाई करने के लिए, कि शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए और बहुत थिन होनी चाहिए. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अगर वो शीट थिक होगी तो रिज़ल्ट जो होगा वो एक्चुअली थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, वो हम एज अ स्पेशल केस उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो इसके एप्लीकेशन होने के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली चार्ज वो होनी चाहिए. यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसकी हर जगह के ऊपर
जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। अगर तो स्टूडेंट्स एक मेटल की शीट है, तो आप जितना भी चार्ज उसे देते हो वो ऑटोमेटिकली यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट उसके ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर वो शीट किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है, तो वो अपने आप से यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं होती है। देन वी विल हैव टू मेक इट श्योर दैट इट हैपेंस। ऑलराइट, अदरवाइज़ अगर आपको ये बताया हुआ है इट इज़ यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड, देन यू नीड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, तो इन दैट केस दैट फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। और अगर मेटल शीट बताया है, even then without thinking for the second time, that formula will be applicable. All right, so let's go ahead. So we are considering this kind of a sheet which is positively charged here in this particular situation. Students, यहाँ पे मैं इसकी फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा आपको इसके फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर मान लो कि हमने इसके फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और शीट भी मैंने पॉजिटिव मान रखी है, इन दैट केस द फील्ड लाइंस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, दैट इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द शीट। यहाँ पे जो शीट है वो आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर पड़ी है। सिमिलरली इफ आई गो बिहाइंड द शीट, देन द फील्ड लाइंस विल अगेन बी लाइक दिस। You can see the direction of field has changed. On the left hand side it is towards the left, and towards the right hand side it is in the opposite direction. सिमिलरली जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो चार्ज कौन सा है शीट के ऊपर उस पर डिपेंड कर रही है। इफ़ इट वाज अ नेगेटिवली चार्ज शीट्स, तो डायरेक्शन जो फील्ड लाइंस की हैं वो इनवर्ड हो जानी थी। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फील्ड होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ दिस शीट। इस शीट की हम चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं सिग्मा, एंड देन वी गो हेड। स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसियस थ्योरम, हमें एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी होती है जो एक सुटेबल शेप की होनी चाहिए। सुटेबल शेप से हमारा क्या मतलब है? By suitable shape we mean that at every point of that Gaussian surface the electric field strength should remain same, and the angle between field and area vector should also be the same. ये दोनों conditions वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं तो हमें उस जो हमने क्लोज सरफेस मानी है, वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू पार्ट्स, ताकि वो हर एक पार्ट के ऊपर एटलीस्ट ये कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हों। सो लेट अस गो अहेड। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में जो गॉसियन सरफेस हो सकती है दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप की सरफेस सपोज कर लूँ, दैट विल ऑल्सो सॉल्व माई पर्पस, क्योंकि उसके ऊपर भी जो फील्ड की सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी जो हमें रिक्वायर्ड है गॉसियन सरफेस से। सो दैट काइंड ऑफ अ शेप विल ऑल्सो सॉल्व माई पर्पस, राइट। तो मैं यहाँ पे क्यूब शेप की गॉसियन सरफेस सपोज कर सकती हूँ, क्यूबॉइड शेप की भी सपोज कर सकती हूँ, और इवन सिलेंड्रिकल शेप की भी सपोज कर सकती हूँ। और वो क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि वो सरफेस जो है वो इस शीट को क्रॉस करती हुई दूसरी तरफ निकलनी चाहिए। सो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। इसकी सिमेट्री सिचुएशन से ये हमें पता लग रहा है। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ योर बुक्स, आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने यहाँ पे क्यूबॉइड शेप की गॉसियन सरफेस सपोज की हुई है। ज़्यादातर रेफरेंस बुक्स में दे हैव कंसिडर्ड इट टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप। आई एम गोइंग टू टेक अप सिलेंड्रिकल शेप ओनली because it is looking quite similar to what you have already done for the case of linear charge distribution. However, there is no harm even in using a cuboid shape Gaussian surface. लेकिन स्टूडेंट्स, spherical will not work here. spherical के केस में प्रॉब्लम है। spherical के केस में उस सफ़ियर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस शीट से एक जितना नहीं रहेगा। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे आप गॉसियस थ्योरम अप्लाई करते टाइम फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं ले सकते हो। सिलेंडर और क्यूबाइड के शेप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सिलेंडर या क्यूबाइड शेप गॉसियन सरफेस आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो। सो लेट अस जस्ट बिगिन विद इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप दी सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज कर रहे हैं जो उसे क्रॉस करके बाहर निकल रही है। ऐसी ही क्यूबॉइड शेप सरफेस भी आप सपोज कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन के बारे में सोचना है पहले। सो लेट अस सी, वी हैव कंसिडर्ड द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस टू बी r, and its length we have considered to be L. Now we are going to consider certain directions of field and area, and before that there is a tip that the field lines remain straight, parallel and uniformly spaced, as we have already seen in the beginning कि इसकी field lines जो हैं वो किस तरह की हैं। इसके
सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हैं बोथ द साइड्स, और वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड देयर. अब बेटे 3 पॉइंट्स हम सपोज कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट वी हैव कंसिडर्ड ए ऑन द राइट हैंड साइड. एट पॉइंट ए जो एरिया वेक्टर होगा उस सिलेंडर की साइड सेक्शन के ऊपर, दैट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड. और फील्ड की डायरेक्शन भी हमने देखा था कि इसी डायरेक्शन में है. एज अ रिजल्ट एट पॉइंट ए जो उसका साइड कैप है यहाँ पे, जो ई एंड एरिया वेक्टर हैं दे आर पैरेलल, एंगल इज 0 डिग्री. सिमिलरली ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड जो साइड कैप है उस सिलेंडर का, वहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर है दैट इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर एंड फील्ड इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. तो जो दोनों साइड कैप्स हैं वहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर जो हैं दे आर पैरेलल. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने बहुत केयरफुली नोटिस करना है इस चीज़ को. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल हुए थे कर्व्ड सरफेस के ऊपर, और जो साइड कैप्स थे सिलेंडर के, वो दोनों साइड्स कैप के ऊपर फील्ड और एरिया वेक्टर थे परपेंडिकुलर. एज ए रिजल्ट जो साइड कैप्स थे वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हुआ था, और जो कर्व्ड सरफेस थी वहाँ पे वो नॉन ज़ीरो था. In contrast to that, when we are considering an infinitely long thin sheet, तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो गई है. जो साइड कैप्स हैं वहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं. However, on the curved surface, we will see field and area vector are actually perpendicular. So, let us consider a point C also. On the curved surface, area vector is vertically upwards, whereas the field is towards the right hand side. As a result, field and area vector are mutually perpendicular. So now we are going to apply the Gauss's law, which states that net flux is equal to E dot ds closed surface integral, and that value is equal to Q by epsilon naught. तो ये चीज़ को हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. प्रीवियस जो हमने एप्लीकेशन की थी वहाँ पे भी द सेम थिंग वी हैव स्टार्टेड विथ. तो हमने करना क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इसको अलग सॉल्व करना है, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसे अलग सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इक्वेट देम बोथ. दोनों को इक्वेट करेंगे और ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ पे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल स्टूडेंट्स इकट्ठा सॉल्व नहीं हो सकता है, एज वी हैव सीन कि ई और एस का जो एंगल है वो वेरी कर रहा है. तो हमें इसे 3 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोल सकें, क्योंकि एंगल हर जगह पे सेम नहीं है. तो हाउ डू वी गो, वी हैव स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स. अब स्टूडेंट जब 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, नोटिस करो अब इंटीग्रल के ऊपर सर्कल नहीं बना हुआ है, विच शोज दैट दिस इंटीग्रेशन इज नॉट ओवर अ क्लोज्ड सरफेस. अब ये 3 ओपन सरफेसेस बन गई हैं, 2 साइड कैप्स हैं और एक कर्व्ड सरफेस है. नाउ वी जस्ट ओपन द डॉट प्रोडक्ट. तो जो ए सरफेस है वहाँ पे ई और एस जो थे देवर पैरेलल, तो एंगल कितना हो गया 0. बी सरफेस के ऊपर भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पे भी एंगल 0 हो गया, लेकिन जो सी सरफेस है वहाँ पे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. तो अब जो सी सरफेस है वहाँ वाली जो वैल्यू है cos 90 होके 0 हो जाएगी. बाकी दोनों वैल्यूज सेम हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे. कॉस वाली टर्म 1 हो जाएगी, ई दोनों में आ जाएगा, तो ई 2e जो है दैट हैज़ बीन टेकन आउटसाइड, और ds का इंटीग्रल. स्टूडेंट ds के इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि ds ऐसे जितने भी सरफेस एरिया एलिमेंट्स हैं उन सब के एरिया को हमने ऐड कर देना है. तो ये एडिशन होनी कहाँ पे है, साइड कैप्स पे. क्लियरली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, साइड कैप्स का ये एरिया. फॉर द केस ऑफ सिलेंडर वी नो दिस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हमने r सपोज कर रखी है. दोनों तरफ दिस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. सो दिस विल बी 2e इंटू पाई आर स्क्वायर. तो जो गॉसेस थ्योरम की इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, उसकी लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व कर ली है. नाउ वी विल मेक यूज ऑफ दिस लॉ टू फाइंड आउट इट्स राइट हैंड साइड. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो फाइंड करने के लिए हमें ये नोटिस करना है कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर सेक्शन है सिलेंडर का, उसके अंदर जितनी शीट है सिर्फ उसी का चार्ज जो है वो इनक्लोज हो रहा है यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि इस शीट का सिर्फ पाई आर स्क्वायर एरिया ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है. तो हमें उस पाई आर स्क्वायर एरिया का ही चार्ज कैलकुलेट करना है, और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें चार्ज पर यूनिट एरिया पता है दैट इज सिग्मा. तो उसे इस एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
then we get to know what is the charge enclosed. So let us see further. सो क्यू बाय एप्सिलन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट. ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन नंबर 1 की. अब लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, राइट हैंड साइड भी हमने फाइंड कर ली है. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट देम बोथ. देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलन नॉट. अब स्टूडेंट्स क्लियरली आपको नजर आ रहा है जो पाई आर स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ, विच शोज कि जो हमने गॉसियन सरफेस सपोज की थी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी लेंथ, दे हैव नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर. तो आपने जो सिलेंड्रिकल सरफेस ली है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप जितना मर्जी ले लो, उससे फील्ड की वैल्यू वेरी नहीं करेगी. उसकी साइज एंड शेप के ऊपर फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो फील्ड है ये एरिया ऑफ द शीट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और उसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उस पर भी ये वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. स्टूडेंट्स सी दिस इज द वन ऑफ द टोटल वियर्ड काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग हेयर. अभी तक हमने जितने भी एक्सप्रेशन देखे हैं we have found electric field depend upon the distance of point of observation, but this is the only expression where we do not see any r lying in the formula. Distance of point of observation का कोई dependence हमें नहीं नज़र आ रहा है. This is the only formula which does not show any distance dependence of the field. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं field और distance का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ E and R, the graph would be like this, which shows there is no variation of field with distance from point of observation. If I write this formula in vector form, then the formula will be like this. I cap यहाँ पे students हमने right hand side के ऊपर point of observation लिया है along the positive x-axis, that is why that I cap is there. Otherwise इसकी कोई भी direction हो सकती है depending upon the situation. So the next is the direction of field intensity is normal to the plane away from the positive charge distribution, and for negative charge distribution it will be towards the plane. ये हमने बिल्कुल beginning में देख लिया. पॉजिटिव शीट के केस में आउटवर्ड परपेंडिकुलर फील्ड होगा और नेगेटिव के केस में इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा. फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. शीट के बिल्कुल पास हो तब भी फील्ड उतना ही है, शीट से दूर हो तब भी फील्ड उतना ही है. Okay, then next is the electric field intensity is independent of the size of Gaussian surface, क्योंकि हमें कहीं पे भी R वाली L वाली कोई टर्म नहीं नज़र आ रही है, तो size of Gaussian surface does not make any difference, and it also does not depend upon the distance of point of observation. This is a very 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 important point to be considered here, कि field की value जो है वो distance of point of observation पे depend नहीं कर रही है. Okay, then the next one is if the plane sheet is thick then the charge distribution will be available on both the sides. अब students हमने ये जितना भी expression derive किया है वो thin sheet के लिए किया है. If instead of thin sheet if we have a thick sheet, if we have a thick sheet like this, काफ़ी thick sheet है, तो उसके केस में ये दो sheets की तरह behave करेगी. एक front sheet है जिसके ऊपर चार्ज है, एक behind sheet है जिसके ऊपर चार्ज है. तो उसके केस में हमने अगर इस किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड फाइंड करना होगा तो वो इस फ्रंट शीट की वजह से भी होगा और जो शीट एट द बैक है उसकी वजह से भी होगा. तो टोटल फील्ड जो है वो एड अप होके डबल हो जाएगा इन द केस ऑफ अ थिक शीट. तो जो फॉर्मूला आपने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला है वो एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन द थिन शीट्स. अगर थिक शीट है तो उसके आउटसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम फील्ड फाइंड करेंगे, that field will be equal to double of this value, that is sigma by epsilon naught only. तो 2 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में. therefore field becomes sigma by epsilon naught. डायरेक्शन उसी तरह से रहेगी, पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड और नेगेटिव के केस में इनवर्ड्स. Okay, now students, there are many times a question have been asked where there are more than one sheet. तो अगर दो शीट्स दी हुई हैं तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है. तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करने लगे हैं दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट्स, और यहाँ पे हम उनके चार्ज डेंसिटीज़ की कुछ एक वैल्यू सपोज करेंगे. पहले अनइक्वल मानेंगे फिर इक्वल मानेंगे. उनके पोलैरिटीज़ पहले हम अनलाइक मानेंगे फिर लाइक मानेंगे एंड सो ऑन. So let us see this thing. Case 1,
व्हेन सिग्मा 1 इज लार्जर देन सिग्मा 2, ये हम इनिशियल कंडीशन सपोज कर रहे हैं। पहली शीट उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, पॉजिटिव में है, और दूसरी शीट जो है उसकी भी हम कुछ चार्ज डेंसिटी मानेंगे। जो सिग्मा 1 वाली शीट है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फील्ड जो है वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द लेफ्ट है, और राइट हैंड साइड के ऊपर उसका जो फील्ड है टुवर्ड्स ही राइट हैंड साइड है, ये भी उसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर है। ये हमने पहली शीट कंसिडर कर ली विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। नाउ वी कंसिडर द सेकेंड शीट। तो जो सेकेंड शीट है उसकी चार्ज डेंसिटी हमने मानी हुई है सिग्मा 2, उसको भी हमने लाइकली चार्ज ही माना है यहाँ पे, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। और जो दूसरी शीट है, दूसरी शीट के केस में हमने चार्ज डेंसिटी कम मान रखी है, हालांकि है पॉजिटिव ही वो भी। अभी हम उसका फील्ड देखेंगे। its field is towards the right hand side if I see in this region, and here in this region it is towards the left, and same is in this region. तो स्टूडेंट्स अभी अगर मैं इनको 3 रीजन्स में डिवाइड कर दूं, आई कॉल दिस एज रीजन 1, आई कॉल दिस एज रीजन 2, और मे बी आई कॉल दिस एज रीजन 3, विच एवर वे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन में दोनों का फील्ड जो है वो सेम ही डायरेक्शन में है। तो अगर मैं दोनों का फील्ड निकाल के ऐड कर दूं, दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट। इस रीजन में क्या है, जो पहली शीट है उसका फील्ड इस डायरेक्शन में है और दूसरी शीट का फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब क्योंकि हमने चार्ज डेंसिटी इक्वल नहीं मानी हुई है तो फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी, तो रिजल्टेंट विल बी डिक्रीज्ड, इट विल बी लार्जर माइनस स्मॉलर, and here in this situation again the field is in the same direction, so it will again get added up. तो इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड सेम होगा और नॉन ज़ीरो होगा, हालांकि जो रीजन 3 हमने यहाँ पे सपोज कर रखा है वहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लार्जर माइनस स्मॉलर करके हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सो लेट अस सी फर्दर। सो वी आर कंसिडरिंग दिस टू बी रीजन 1, जहाँ पे फील्ड हमें क्या दिख रहा है, नॉन ज़ीरो है, दोनों फील्ड ऐड हो गए हैं। सेकेंड इज रीजन 2, तो जो रीजन 2 है वहाँ पे फील्ड की वैल्यू जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आई है, क्योंकि हमने पहली शीट की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मानी है तो उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसी के फील्ड की डायरेक्शन में नेट फील्ड आएगा। और जो रीजन 3 है वहाँ पे सेम एज दैट ऑफ रीजन 1, हालांकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, हालांकि दोनों के फील्ड जो हैं दे आर स्टिल बीइंग एडेड अप। तो अगर हम इसे कंबाइन करके समराइज करें तो रीजन 1 में जो फील्ड है वो ऐड हो गया दोनों का, इट विल बी इन दिस वे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पहले का था, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का, ऐड हो गए दोनों। रीजन 2 में सब्ट्रैक्ट हो गए हैं और रीजन 3 में फिर से ऐड हो गए हैं। डायरेक्शन रीजन 1 और 3 में ऑपोजिट है एक दूसरे के, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है। और रीजन 2 में क्या हो गया है, फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। ओके, नाउ सेकंड केस फॉर द 2 शीट्स। यहाँ पे अभी हम क्या सपोज करने लगे हैं कि एक शीट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी शीट नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिव शीट है उसका फील्ड हमें पता ही है, हाउ डू वी फाइंड दैट फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो हो गई है। अभी हम सेकंड शीट सपोज करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। At this point, if I try to find out the field due to first sheet, that will be in this direction, and due to second sheet, it will be in the opposite direction, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसे ये सेकेंड वाली शीट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अगर इन बिटवीन पॉइंट लें तो वहाँ पे ये वाली शीट उसे रिपेल करेगी और सेकेंड वाली शीट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे फील्ड ऐड होगा। और इस रीजन में ये पहली जो सेकेंड शीट है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो फर्स्ट शीट है वो उसे अपने से दूर रिपेल करेगी। तो एज अ रिजल्ट जो रीजन 1 और रीजन 3 हैं, इन दोनों रीजन्स में फील्ड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और रीजन 2 में जो फील्ड है वो ऐड होगा। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस केस, जहाँ पे लाइकली चार्ज शीट्स थी, तो वहाँ पे आउटसाइड रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग था और इनवर्ड रीजन जो था शीट्स के बीच का रीजन, वहाँ पे फील्ड वीक हो गया था। यहाँ पे ऑपोजिट है, जब अनलाइकली चार्ज शीट्स होंगी तो इन बिटवीन वाले रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आउटसाइड वाले रीजन में जो फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर चार्ज डेंसिटीज इक्वल हों तो इवन ज़ीरो भी हो जाएगा। नाउ वी कंसिडर द फील्ड ड्यू टू द सेकेंड शीट, एंड एज अ रिजल्ट वी रीच एट दिस कंक्लूजन, in region 1 the field has increased, sorry, it has decreased, but the value is small. Region 2 the field will increase क्योंकि दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और रीजन 3 में भी फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। इफ वी सी द कंक्लूजन ऑफ दैट, दिस इज इन रीजन 1, रीजन 2 एंड दिस इज इन रीजन 3। तो ये ऑपोजिट हो गया व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन
first case. Okay, now come to the last situation here, the third case. Students, this is very very important, क्योंकि अभी इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो सेम यही सिचुएशन होती है, दो अनलाइकली चार्ज शीट्स होती हैं, इक्वल चार्ज डेंसिटी बट ऑपोजिट पोलैरिटी. तो उसके फील्ड का एक्सप्रेशन जो है, जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, वही यूज़ करेंगे हम आगे भी. सिमिलरली अगर आपने यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करना है तो जनरली हम इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं. वी मेक यूज़ ऑफ टू प्लेट्स विच आर हैविंग ऑपोजिट चार्ज पोलैरिटीज एंड इक्वल चार्ज डेंसिटी. तो वही केस हम यहाँ पे कंसिडर करने लगे हैं. तो पहली शीट पॉजिटिवली चार्ज है, उसके फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज एज शोन हियर. सेकेंड शीट इज नेगेटिवली चार्ज, उसका फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से शो हो रही है. तो क्लियरली आपको क्या नज़र आ रहा है, रीजन 1 में फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है और दोनों का फील्ड इक्वल है क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है. तो एज अ रिजल्ट रीजन 1 में फील्ड हो जाएगा 0. सिमिलरली रीजन 3 में भी फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन रीजन 2 में दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा और जितनी एक की वैल्यू है उससे डबल हो जाएगा. सो रीजन 1 में नेट फील्ड इज 0, रीजन 2 में फील्ड इज नॉट 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू फील्ड ऑफ फर्स्ट शीट प्लस फील्ड ऑफ सेकेंड शीट. और जो रीजन 3 है वहाँ पे भी फील्ड 0 हो जाएगा. इसका मतलब अगर दो इक्वल चार्ज डेंसिटी वाली और ऑपोजिट पोलैरिटी वाली शीट्स हों तो उनके आउटसाइड फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. जितना भी फील्ड है वो उसके इंटीरियर में होता है, और वो कितना होता है, जितना एक शीट का है उससे डबल. तो एक का कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का मिला के होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो लेट अस सी दिस वन. Right, so in the interior region the field is sigma by epsilon naught, however on the outside regions the field is 0. All right, so this is all about the electric field due to uniformly charged thin sheet. अब इसके आगे वाली जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम की, that we are going to begin with. This one is again very important. The electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell. So स्टूडेंट, थिन स्फेरिकल शेल के केस में 3 केसेस बनेंगे कंसिडरेशन के. द फर्स्ट केस विल बी इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज आउटसाइड द शेल. सेकेंड विल बी इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. थर्ड इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज इनसाइड द शेल. तो तीनों केसेस अभी हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव कंसिडर्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल. इस तरह से उसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की कुछ वैल्यू हम सपोज कर लेंगे. And we consider the center of the shell to be O. इस शेल की रेडियस जो हमने मान ली है वो R मान ली है, और ये जो शेल है ये मेटेलिक शेल है, हॉलो शेल है, यहाँ पे हमने माना हुआ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर. जो चार्ज हमने सरफेस के ऊपर मान लिया है दैट इज Q. अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिया है वो आउटसाइड द शेल है. तो स्टूडेंट, जो हमने गॉसियन सरफेस जब भी सपोज करनी है वो हमने इस तरह से सपोज करनी है कि वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में से क्रॉस करे. तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगी वो P पॉइंट से क्रॉस करती होगी, और सिमेट्री सिचुएशन से हमें पता लग रहा है सफियर के केस में जो गॉसियन सरफेस होगी दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप. सो वी हैव कंसिडर्ड दिस टू बी दी गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सपोज कर ली है जिसकी हम कुछ रेडियस सपोज कर लेंगे. द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस वी हैव कंसिडर्ड टू बी स्मॉल r. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बाहर वाला सफियर है उसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो सिर्फ एक गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है. नाउ वी विल मेक यूज ऑफ द गॉसेस थ्योरम एंड देन वी गो हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब P पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया सपोज किया है जिसका हम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और फील्ड यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर लेंगे. तो P पॉइंट के ऊपर जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, और जो E वेक्टर है दैट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड्स. तो क्लियरली P पॉइंट के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, E एंड DS दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो वहाँ पे एंगल जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री. तो फ्रॉम गॉसेस लॉ E dot ds closed surface integral is Q by epsilon naught. So we substitute the values. E and ds they are parallel. So E dot ds will be equal to simply E into ds.
राइट, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, जो आपको गॉसियन सरफेस नज़र आ रही है उसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सफ़ियर से एक जितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो हम ई को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो ई को हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ इंटीग्रेशन किसके ओवर होनी है, डीएस के ओवर होनी है, ओवर द कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे सारे डीएस 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 एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो इट विल गिव अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ गया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। Therefore, E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग ज़रा सोचिए इसके बारे में, ये रिजल्ट हमने पहले भी देखा हुआ है कहीं पे। तो ये किस चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड था? आई थिंक यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा है Q और उससे R डिस्टेंस के ऊपर पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P दैट इज इक्वल टू R, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो यही आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। आर का स्क्वायर आता था यहाँ पे। तो क्लियरली हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो इस तरह से है जैसे कि ये सारा सफ़ियर का चार्ज सफ़ियर के ऊपर ना होके इसके सेंटर पे पड़ा हो, और उससे आर डिस्टेंस के ऊपर हम फील्ड निकाल रहे हों। तो जैसा रिज़ल्ट हमारे पास पॉइंट चार्ज के केस में आना था वैसा ही सफ़ियर के केस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द सफ़ियर बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज लाइंग एट इट्स सेंटर। तो उसके केस में अगर हमने फील्ड निकालना है तो हम उसे एक पॉइंट चार्ज लाइंग एट इट्स सेंटर सपोज कर लें, तब भी हमारे पास फील्ड का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। बट स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर टू लेट यू नो कि वो चार्ज सेंटर में पड़ा नहीं है, वो सिर्फ बिहेव ऐसे कर रहा है कि वो सेंटर पे जैसे पड़ा हो। रिजल्ट उसके मैथमेटिकली वैसे आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज सेंटर पे है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। इंटीरियर में चार्ज जो है वो ज़ीरो है, इस चीज़ को ख्याल रखना है। लेकिन रिजल्ट जो है इवन फील्ड के और पोटेंशियल के भी ऐसे ही आएंगे जैसे वो सारा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह उसके सेंटर पे पड़ा हुआ था, उस तरह का रिजल्ट यहाँ पे हमें नज़र आता है। So let us see further. Since Q is equal to sigma into 4 pi r square, स्टूडेंट्स आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप फर्दर मैं बता रही हूँ आपको। अब Q की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना है सफियर का, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास फील्ड का आ जाएगा फॉर द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द दिस spherical surface. So electric field due to uniformly charged thin spherical shell at the point outside is such that whole charge was concentrated at the center. बट अगेन आई रिमाइंड यू कि असल में चार्ज है नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो चार्ज सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह पड़ा हो। Okay, now this for the second case of this, for the point which lies on the surface of the shell. स्टूडेंट, जब ऑन दी सरफेस होगा तो तब भी चार्ज सारे का सारा ही एनक्लोज होगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो रेडियस हमने गॉसियन सरफेस की पहले स्मॉल आर ली हुई थी, अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी सफियर के ऊपर आ जाएगी और उसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। आप सीधा जो पीछे वाला रिजल्ट है उसी में चेंज करके स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, इवन देन you will get your result. तो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस लेनी है वो ऑन द सरफेस ऑफ सफियर है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। तो व्हेन वी अप्लाई द गॉसियन सरफेस द गॉसियस थ्योरम, द रिजल्ट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ बिफोर। यहाँ पे भी एंगल जीरो हो गया है, डॉट प्रोडक्ट सिंपली ई इंटू डी एस के बराबर हो गई है, ई कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, डी एस का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिचुएशन। तो रिजल्ट यहाँ पे भी सेम ही आया, पॉइंट चार्ज जैसा ही, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अभी जो रेडियस आपने लेनी है वो सफियर की रेडियस लेनी है, जितना जिस सफियर के ऊपर चार्ज पड़ा है। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट स्टूडेंट सिर्फ सरफेस ऑफ सफियर के ऊपर एप्लीकेबल है, आउटसाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये रिजल्ट
सरफेस पे भी और बाहर भी, दोनों जगह पे एप्लीकेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप आर की क्या वैल्यू ले रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस इज मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, जो पिछला केस था वहाँ पे ई का जो रिजल्ट था वहाँ पे डिनोमिनेटर में स्मॉल आर आ रहा था, और स्मॉल आर हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल आर से बड़ा लिया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट अगर आप सरफेस से बाहर जाते हो, सफियर से बाहर जाते हो, तो फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ओनली ऑन द सरफेस। So third case is for the point B which lies inside the shell. तो इनसाइड द शेल पे अगर हम पॉइंट सपोज करें, तो जो बी पॉइंट हमने लिया है वो इनसाइड लिया हुआ है, तो गॉसियन सरफेस बी पॉइंट से क्रॉस करेगी। अब स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी सिंपल थिंग टू बी कंसिडर्ड हेयर, जितना भी चार्ज है वो तो बाहर पड़ा है, तो जो इनक्लोज चार्ज की हमें ज़रूरत है फॉर अप्लाइंग गॉसियस थ्योरम, वो चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं है। दैट मीन्स टू से फॉर द इंटीरियर इफ वी कंसिडर applying Gauss's theorem, then the right hand side will turn out to be 0 because there is no net charge enclosed. तो अगर net charge enclosed नहीं है तो automatically E will also become 0. So there will be no charge in the no field in the interior. तो यहाँ पे भी हम एक एरिया एलिमेंट सपोज करते हैं, फील्ड की वैल्यू हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरफ है, तो गॉसियस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वो 0 हो जाएगी क्योंकि कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, राइट। This will be equal to 0 because the charge enclosed is 0. You can just simply write this down that as charge enclosed is 0, therefore E will be equal to 0. So this is the third case. The property E equal to 0 inside the cavity is used for electrostatic shielding. Students, electrostatic shielding का जो concept है वो हम next वाले chapter में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है किसी रीजन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से अलग करना है। तो अगर हम एक हॉलो कंडक्टर लेते हैं तो उसके इंटीरियर में हर एक जगह के ऊपर फील्ड ज़ीरो होता है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम देखने लगे हैं कि फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है। जब तक रेडियस जो डिस्टेंस है जब तक कैपिटल आर तक नहीं हो जाता तब तक जो फील्ड है वो ज़ीरो ही है। उसके बाद कैपिटल आर के ऊपर आके वैल्यू मैक्सिमम है, और उसके बाद वो इनवर्स आर स्क्वायर के साथ वेरी करता है। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू शो हियर। ये वेरिएशन कब की है, व्हेन यू आर आउटसाइड द सरफेस, और जब आप सरफेस के ऊपर हो, रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, वहाँ पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और उसके बाद जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उससे कम वाला जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है दैट इज 0. Alright students, so with this your chapter number 1 is finished, and we have finished with the applications of the Gauss's theorem, and now we'll move on to some of the practice questions whose hints I'm going to give you, and then on Monday there will be a test. So let us see first question. A uniformly charged conducting sphere of diameter this has a surface charge density this. Calculate the charge on the sphere, total flux through the sphere. स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि जब आपके पास से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से हैं आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव होता तो वो इनवर्ड होनी थी। तो इसके फ्लक्स की वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट है यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज फाइंड करने के लिए आपको उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है। हमें क्या पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। स्फीयर का एरिया निकालने के लिए आपको डायमीटर दे दिया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है, हालांकि माइक्रो कूलम लिखा है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम। और ये जो आंसर आपको चाहिए ये किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो वेरी इजीली बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड दिस वैल्यू ऑफ डायमीटर आप जो क्यू की वैल्यू है वो निकाल लोगे। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज़ द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब फ्लक्स के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ही सपोज करूँ तो वहाँ पे सारे का सारा चार्ज जो सरफेस के ऊपर है वो इनक्लोज्ड ही होगा। तो एज अ रिजल्ट अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला लगा के कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी करेक्ट। तो फ्लक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्यू हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Second is a conducting sphere of radius this has unknown charge if the field
field 20 centimeter from the center of sphere is this, and the points radially inwards. What is the net charge on the sphere? स्टूडेंट्स जो फील्ड है यहाँ पे इस स्फीयर का आपको बताया है कि यहाँ से सेंटर से 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमने लिया है, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर, और ये फील्ड जो है वो किस तरफ है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड फील्ड होने का मतलब क्या होता है? इनवर्ड फील्ड यानी कि चार्ज ऑन द स्फीयर शुड बी नेगेटिव। तो हमें चार्ज का साइन पता लग गया है, वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? वी नो द फॉर्मूला ड्यू टू द फील्ड ऑफ द स्फीयर। फील्ड ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सेम होता है जैसा कि पॉइंट चार्ज का है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको बताई हुई है, क्यू जो है वो आपने निकालना है, के आपको पता है, फील्ड आपको दिया हुआ है। तो गो हैड एंड फाइंड आउट। यहाँ पे कन्वर्जन सिर्फ एक सेंटीमीटर वाली टर्म जो है उसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी इन एसआई सिस्टम। ऑलराइट, ओके, नाउ कम टू थर्ड वन। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। तो दो लार्ज मेटल प्लेट्स यहाँ पे आपको दे रखी हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। लार्ज जब बोल दिया है तो आप इसे इनफाइनाइट साइज सपोज कर लोगे। On the inner faces the plates have surface charge densities of opposite signs। इसका मतलब कि अगर ये एक पॉजिटिव है तो दूसरी जो है वो नेगेटिव है। ऑपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। तो आपको यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी हुई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है। व्हाट इज़ द फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट? ये इसको मैं प्लेट 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ। तो आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो यहाँ पे इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन क्योंकि चार्ज डेंसिटीज जो हैं वो बराबर हैं तो दोनों का फील्ड भी बराबर होगा और इक्वल एंड ऑपोजिट होके फील्ड क्या हो जाएंगे, दैट यू कैन थिंक अबाउट। सिमिलरली इस रीजन में इसका फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरे का भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लोगे। और थर्ड केस में ये इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पहली प्लेट का इस डायरेक्शन में होगा, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ पे इसका फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और इसका फील्ड वीक होगा, तो रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो लार्जर माइनस स्मॉलर होना चाहिए। बट यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि शीट के केस में फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे आप राइट हैंड साइड ऑफ माइनस सिग्मा वाली जो सेकेंड प्लेट है उसके राइट हैंड साइड पे हो, तब भी दोनों शीट्स का जो फील्ड है दैट विल बी सेम। As a result, there will be no difference at all. So this is it for today. Students, with this, your chapter 1 is finished now. On Monday there will be a test, and today try to finish the assignment as early as you can and send it back to me. That's all. Thank you.